me? Hear my voice? Yes, sir. Okay, so I had given you an assignment in the last day. So have you tried all the questions? Yes, sir. Any doubt in any of the questions? No, sir. Anybody? Okay, so can you all see the whiteboard clearly? Now today we will be starting with the circular system of angle measurement. Okay. See, this is the third system. The first two systems, I hope you remember. The first was sexagesimal system, in which we used to measure angle by in degree, minute and second. And the second system was grade, minute and second. Okay. So now let's come to the third system. In fact, this is the one which is used widely. In fact, सबसे ज्यादा इस्तेमाल यही वाला सिस्टम होता है. तो अब यहां पे देखो इसमें कॉन्सेप्ट क्या है. The concept is, let us take any circle. Now this is the center of the circle and the radius of the circle is say r. Now if I take an arc of length equal to radius of the circle, let us say AB, see the length of this arc, if this is equal to radius of the circle, it will subtend some angle at the center. Now irrespective of the radius अगर सर्कल बड़ा लेते हैं या छोटा लेते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. क्यों? क्योंकि रेडियस सर्कल का जितना होगा आर्क का लेंथ उतना ही लेना है. तो देखो ये जो एंगल डिफाइंड होता है, now this angle, if the length of this arc is equal to the radius of the circle, this angle is defined as 1 radian. So that is the basic definition of 1 radian. So in fact, if you want, I can tell you the definition. You write down. Ready? Yes, sir. Write it down. The angle subtended by arc of a circle, the angle subtended by arc of a circle whose length is equal to its radius at the center of the circle, is defined as 1 radian. So whenever I write, just respond in yes or no. Okay. Now tell me, what is the total angle subtended by this circumference? See, the length of circumference of the circle is 2 pi r. Okay. So 2 pi r subtends how much angle at center? 360. See what? 360 degree. So 2 pi r length. Now this subtends 360 degrees. So that means 1 unit length. Now 1 unit length, it will subtend how many degrees? 360 divided by 2 pi r. See this many degrees. So r unit length will subtend how much? 360 divided by 2 pi r into r. And if you cancel out, it comes out to be 180 by pi. Now this many degrees.
So the angle subtended by r unit length. That means what? The radius of this, the length of this arc is r units. So that is what is 1 radian. So I'll say that 1 radian is equal to 180 by pi degrees. Now, as you are aware, pi is an irrational number. Approximately, we write it, its value as 3.14, or we also take it as 22 by 7. So taking into consideration this value, and on calculation, you get the approximate value to be 57.295 degrees. So 1 radian is approximately equal to this many degrees in sexagesimal units. But the basic assumptions from here, what we get is, see, we can write pi radians to be equal to 180 degrees. So pi radians 180 degree means which angle? This angle made by a half circle. Now, the angle made by a quarter circle is one right angle. So you divide both the sides by 2. So can I say that one right angle, this is equal to pi by 2 radians. We can broadly use this. Now, the angle made by a half circle is 180 degree, or I'll say pi radians. The angle made by one right angle is equal to pi by 2 radians, and one full circle angle will be twice of 180, that is 360. That means 2 pi radians. Can you all hear me? There is some background. There is some background noise coming. Is the visibility clear to all of you? Yes, sir. Yes. Okay. Do you want to write down something? If you want to write down, then better you write it down. I'm giving you 2 minutes for that. Sir, can you explain question number 28 of the homework? 28. Just a minute, let me see. Have you written this? Have you understood? Yes, sir. Yes, sir. ये लिखना हो गया ना सबका? 28. यही चीज तो मैंने पहले ही पूछा था कि किसी को कोई डाउट है तो पूछो. Just a minute, let me see. How many degrees, minutes and seconds are respectively passed over 11.5 minutes by the hour and minute hands of a watch? देखो, क्वेश्चन का मीनिंग यह है, देखो घड़ी में जब 11:30 मिनट क्रॉस कर चुका होता है, ठीक है, तो आवर हैंड और मिनट हैंड कितना क्रॉस किया है, मतलब कितना एंगल क्रॉस किया है, कहां से, ओरिजिनल के रेस्पेक्ट में. तो देखो घड़ी वाला क्वेश्चन अभी ऐसा हम लोग कभी सेकंड एक्सरसाइज में लेंगे. ध्यान से देखो, घड़ी का जितना भी क्वेश्चंस होता है इसमें कुछ बेसिक बात ध्यान से सुन लेना. देखो इसी में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं. देखो ये मोर और लेस घड़ी का स्ट्रक्चर मैं कोशिश कर रहा हूं ठीक ठाक बनाने का.
let us say this is your 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, correct? See, how many parts I have divided this entire circle into? See, I have divided this entire circle into 12 parts. So the angle made by each part is how much? 30 degree. 30 degree. Correct? अब देखो तो ये 30, ये 30, ये 30, हर 30 डिग्री को मिला दो. अब यहाँ पे ये छोटे छोटे मार्किंग्स भी होते हैं. देखो ऐसे, देखो बीच में ऐसे छोटे छोटे 4 मार्किंग्स होते हैं. आई होप यू हैव सीन दैट केयरफुली इन अ वॉच. देखो ऐसा मार्किंग्स होता है कि नहीं. अब बताओ ये कितना पार्ट्स में इस आर्क को डिवाइड किया? 5 पार्ट्स. करेक्ट. तो 30 डिवाइडेड बाई 5 यानी हर पार्ट में कितना एंगल बनाया? 6 डिग्री. 30. करेक्ट, 6 डिग्री. तो ये जो छोटा छोटा पार्ट्स है ये 6 डिग्री का है. अब यहाँ पे ये बात समझो कि मिनट हैंड स्टार्ट्स फ्रॉम हियर. करेक्ट. मिनट हैंड यहाँ पे, अगर मान लो आवर हैंड और मिनट हैंड दोनों यहीं पे, तो जब ये मिनट हैंड एक फुल सर्कल रोटेट करेगा तब आवर हैंड यहाँ पे आएगा. हाँ या ना? देखो मिनट, आवर हैंड यहाँ पे है, मिनट हैंड यहाँ पे है. जब मिनट हैंड पूरा एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है तब जाके आवर हैंड तुम्हारा यहां से यहां आता है. तो इसका मतलब क्या हुआ? 360 डिग्री रोटेशन, ओके, ऑफ मिनट हैंड is equal to, in fact, 30 degree. rotation of our hand. Yes or no? Yes sir. देखो ये हम कह सकते हैं. इसका मतलब अगर मिनट हैंड 1 डिग्री रोटेशन ऑफ मिनट हैंड, नाउ दिस इज इक्वल टू 30 by 360 यानी 1 by 12 डिग्री रोटेशन ऑफ आवर हैंड कह सकते हैं. तो देखो ये एक सिंपल सा रिलेशन याद रखो कि करस्पॉन्डिंग टू 1 डिग्री रोटेशन ऑफ मिनट हैंड, द आवर हैंड विल रोटेट बाय 1 by 12 degrees. This is a useful data which you will be using in all questions related to watch. मैं वॉच का अभी 2-3 प्रॉब्लम भी लेके बता देता हूं. अब यहां ध्यान से देखो. अब मैंने क्वेश्चन में दिया है कि 11 and half minutes अगर क्रॉस किया, देखो एज पर दिस क्वेश्चन, तो 11.5 मिनट मतलब क्या हुआ? देखो ये 5 हुआ, ये 10 हुआ और ये 11 और ये इसका आधा. ठीक है. 11 1/9 है. 11 1/9 है कि 1/2 है? 1/2 आप बोले थे सर, पूछा था 1/9. किसी ने पूछा था तो मैंने 1/2 बोला था. मैंने पूछा था. हाँ तो 1/2 करके भी हम बता देते हैं. 1/9 का भी प्रोसेस सेम है, कोई खास दिक्कत नहीं है इसमें. ठीक है. इधर देखो बच्चे, देखो हर मिनट मतलब कितना डिग्री हुआ? देखो एवरी मिनट corresponds to how many degrees? Every minute is equivalent to 6 degrees. देखो 1 मिनट के लिए ये मिनट हैंड यहां आएगा, तो देखो ये छोटा सा 1 यूनिट ट्रेवल किया यानी कितना डिग्री ट्रेवल किया? 6 डिग्री. तो 1 मिनट ट्रेवल के लिए 6 डिग्री, तो आधा मिनट ट्रेवल के लिए कितना हुआ? 3 डिग्री. ठीक है. तो अब ये बताओ यहां पे यहां तक कितना डिग्री हुआ? देखो 1 2 30 + 30 60, और यहां पे आ जाओ 1 मिनट और, तो 11 मिनट के लिए कितना हुआ? 66 डिग्री और प्लस ये 11.5 यानी 11.5, मतलब ये हो गया तुम्हारा 3 डिग्री ऐड कर दो तो 69 डिग्री. इनफैक्ट हम ब्रेकअप करके लिख रहे हैं 30 + 30 + 6 + 3. तो दिस मेनी डिग्रीज, दैट इज 69 डिग्रीज, ये मिनट हैंड रोटेट किया. ठीक है. तो मिनट हैंड हैज कवर्ड 69 डिग्री. नाउ अगर 1 डिग्री मिनट हैंड ट्रेवल करता है तो आवर हैंड कितना कवर किया? 1/12. तो इसीलिए 69/12 डिग्री हैज बीन कवर्ड बाय द आवर हैंड.
अब 69 को 12 से इनफैक्ट देखो 3 से कैंसिल कर दो तो ये कितना हुआ 23/4। तो 23/4 यानी 5 3/4। अब 5 3/4 डिग्री कैसे लिखेंगे? तो देखो 60/4 यानी 15 मिनट, तो 5 डिग्री 15 minutes. This is the angle which has been traveled by the hour hand. Okay, I hope you have understood now. ये समझ में आया बच्चे लोग? हाँ ना, कोई बोलो। तुम लोग लिख लिए हो ये वाला क्वेश्चन? व्हाट्स, लिख लो। देखो व्हाट्स द रिलेटेड, ये बेसिक ऑब्जर्वेशन याद रखो। मैं 2-3 क्वेश्चन अभी और करवा देता हूँ व्हाट्स का भी, सो दैट 5 डिग्री 45 मिनट्स होगा। हाँ सर, वो 3/4। 3 into 60/4 हो। हाँ करेक्ट 45 मिनट्स। 5 डिग्री 45 मिनट्स। और 1/9 लेके अगर चलोगे तो यहाँ पे देखो 6/9 यानी 2/3। ठीक है, तो ये 2/3 डिग्री को हम लोग लिख देंगे, दैट इज 60/3 into 2, so that means how much 40। तो अगर ये ऐसा होगा तो ये होगा 66 डिग्री 40 मिनट्स। अगर ये 1/9 मिनट्स होगा तो ठीक है, तो उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। किसी एक का ऑडियो खुला हुआ है देखो परमानेंटली, वो थोड़ा म्यूट कर लो, डिस्टरबेंस आ रहा है। गणेश कुमार। सर हाँ गणेश, हाँ, तुम्हारा सर। ऑडियो म्यूट कर लो, ऑडियो को म्यूट कर लो। सर अब देखो सबको साफ साफ सुनाई पड़ रहा है? यस सर। ओके, अब ये मिटाएं। हाँ सर, लिखिए। अच्छा चलो ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन भी लिखो ताकि तुमको घर। और कोई ये फर्स्ट एक्सरसाइज में किसी और को कोई डाउट है बच्चे? फर्स्ट एक्सरसाइज एनीबॉडी हैज अ डाउट? नो। ओके चलो एक क्वेश्चन लिखो। फाइंड द एंगल इन रेडियंस, डिग्रीज एंड ग्रेड्स, मतलब तीनों मेजर में निकालना है। लिखे फाइंड द एंगल इन रेडियंस, डिग्रीज एंड ग्रेड्स between the hour hand and minute hand, between the hour hand and minute hand of a clock when the time is 3:30, when the time is 3:30। देखो टाइम जब 3:30 है तो ऐसे केसेस में डायग्राम भी ड्रॉ करना। देखो 3:30 मतलब 3:30। तो देखो 3:30 जब बजेगा
तो अब यहाँ देखो, ये बहुत ही आसान सवाल है, अगर तुम चाहो तो ओरली भी कर सकते हो। देखो आवर हैंड कहाँ पे होता है, देखो यहाँ पे होगा आवर हैंड। देखो दिस इज वेयर द आवर हैंड इज। और 3:30 बजा है तो मिनट हैंड कहाँ पे होगा, देखो यहाँ पे होगा। तो दिस इज द एंगल बिटवीन द मिनट हैंड एंड आवर हैंड जो हमें निकालना है। तो इसके लिए मुझे ये वाला एंगल चाहिए। देखो ये टोटल एंगल कितना है, ये टोटल एंगल 90 में से ये छोटा वाला एंगल, ये मान लो हम सबट्रैक्ट कर देंगे तो ऑटोमेटिकली मुझे ये एंगल मिल जाएगा। देखो क्या ये बात समझ में आया? Yes. हेलो, Yes, sir. ओके। अब बताओ, या अगर मिनट हैंड यहां से यहां तक आया है तो मिनट हैंड कितना एंगल कवर किया है? 180. देखो एंगल, करेक्ट। तो एंगल कवर्ड बाय मिनट हैंड इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखो 1 डिग्री रोटेशन, करेक्ट, 1 डिग्री रोटेशन ऑफ मिनट हैंड is equal to 1/12 degree rotation of our hand। देखो अभी अभी समझाया था। तो 180 डिग्री अगर रोटेशन इसका हुआ तो 180 डिवाइडेड बाय 12 डिग्री आवर हैंड रोटेट करेगा। 180 बाय 12 का मतलब हुआ 15 डिग्री। देखो आवर हैंड विल रोटेट बाय 15 डिग्रीज, राइट। अब देखो 15 डिग्रीज कहां से, तो ये जब 3 पे था तब ना ये यहां से फिर चालू किया, तो यानी ये वाला छोटा वाला एंगल 15 डिग्री होगा। तो देखो 90 में से, तो यानी रिक्वायर्ड एंगल इज हाउ मच, 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री एंड दिस इज इक्वल टू 75 डिग्री। ठीक है। अब देखो ये हम कैलकुलेशन करके निकाले, और कैलकुलेशन इसलिए जानना चाहिए क्योंकि कभी जब अजीबोगरीब टाइम देगा तब ये कैलकुलेशन ही तुम्हारा मेथड से सही आंसर आएगा। हालांकि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में तुम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में भी आंसर दे सकते थे। बताओ कैसे? देखो ये 3 और 4 के मिडवे में होगा कि नहीं आवर हैंड, हाँ या ना? देखो मिडिल में ना होगा, 3.5 मतलब एकदम मिडिल में। तो ये 30 टोटल divided by 2. करेक्ट, तो 15 डिग्री ये पहले ही आ गया। तो देखो 30 30 60 और 15 75। सब्ट्रैक्ट करो चाहे ऐड करो, देखो 30 30 15 तो मिला दो 75 आ गया। तो Yes. ये तरीका से भी हम निकाल सकते थे। अब इनफैक्ट देखो मैं क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर देता हूं, एक मिनट रुको। तो 75 डिग्री ये किस में आया, अभी काम पूरा नहीं हुआ है। 75 डिग्री डिग्रीज में आया। अब ये बताओ 90 डिग्री 100 ग्रेड होता है और ये π/2 रेडियंस होता है, करेक्ट, हाँ या ना? तो देखो 1 डिग्री कितना हुआ, π/180 रेडियंस हुआ, रेडियन के टर्म्स में। तो ये बताओ इसको हम लोग कितना कहेंगे, π/180 इंटू 75, देखो ऐसा कहेंगे 75 डिग्री इतने के बराबर होगा, 5/12 करेक्ट, 5/12 5 तो देखो रेडियन के टर्म्स में हम क्या कहेंगे इस एंगल को, 5π/12। अब यही चीज देखो 10/1 डिग्री 10/9 ग्रेड्स है। देखो 1 डिग्री इज 10/9 ग्रेड्स। तो इसको हम क्या लिखेंगे बताओ, 75 इंटू 10/9, नाउ दिस मेनी ग्रेड्स, क्या ये लिख सकते हो? तो 750 को अब अगर 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बताओ, 9 8 72, ये हो गया 30, 9 3 27, अगेन 30, तो ये आते जाएगा 333। तो इसको हम लिखेंगे 83 ग्रेड्स 33 मिनट्स एंड 33 सेकेंड्स। देखो ऐसे लिखेंगे। तो देखो तीनों मेजर में एंगल देखो हम लिख सकते हैं। क्या ये सबको समझ में आया? किसी को कोई कंफ्यूजन कहीं पे भी हो तो पूछो। मैं थोड़ा क्वेश्चन चेंज करके भी लेता हूं क्योंकि ये तो इत्तेफाक से परफेक्ट आ गया। ठीक है, रेडी?
शुड आई टेक अप अनदर क्वेश्चन? इसी में टाइम चेंज कर लो, क्वेश्चन सेम है, लिखो find the angle between the hour hand and minute hand. Find the angle between hour hand and minute hand of a clock when the time is 20 minutes to 6. 20 minutes to 6. ठीक है, मतलब 6 बजने में 20 मिनट बचा हुआ है। तो देखो जब 6 बजने में 20 मिनट बचा होगा तो दोनों में कितना एंगल होगा, अब ये निकाल दो। तो देखो सबसे पहले ऐसे केसेस में डायग्राम जरूर ड्रॉ करना, ठीक है। देखो 6 बजने वाला है, बजा नहीं है, तो घड़ी का कांटा कहां पे होता है? आवर हैंड, देखो यहां होगा। और 20 मिनट है, यानी देखो ये हो गया तुम्हारा 10 और 10, यानी यहां पे तुम्हारा मिनट हैंड। देखो मिनट हैंड का लोकेशन यहां, करेक्ट? क्या ऐसा ही ना होगा? 6 बजने में 20 मिनट, देखो मिनट हैंड यहां पे है, आवर हैंड यहां पे। अब देखो 30 + 30 60, और ये जो छोटा सा एंगल है ये चाहिए हमको। हम एक काम कर, ये एंगल को x मान लेते हैं, ठीक है, ये वाला एंगल को x मान लो, ये छोटा वाला एंगल को। तो 30 में से ये सबट्रैक्ट कर दोगे तो अपने आप ये वाला बच जाएगा। अब जरा ध्यान से देखो मिनट हैंड कितना ट्रेवल किया है, देखो यहां तक आया तो 8 × 30, यानी एंगल ट्रेवल्ड बाय मिनट हैंड कितना हुआ? एंगल ट्रेवल्ड बाय मिनट हैंड is equal to 8 × 30, यानी 240 डिग्रीज। देखो इसमें कोई डाउट किसी को? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 मिनट हैंड यहां पहुंचा। अब एंगल ट्रेवल्ड बाय मिनट हैंड अगर इतना है तो एंगल ट्रेवल्ड बाय आवर हैंड कितना होगा? बोलो, ट्रेवल्ड बाय आवर हैंड कितना हो जाएगा? 240 डिवाइडेड बाय 12 डिग्रीज, यानी कितना हुआ? 20 डिग्रीज। देखो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। सो x इज इक्वल टू हाउ मच? 20 डिग्री। अब x अगर 20 डिग्री है तो देखो ये बचा हुआ एंगल कितना होगा? ये छोटा वाला एंगल, बोलो हेलो, कैन यू ऑल हियर मी? करेक्ट, 10 डिग्री, 10 डिग्रीज, वेरी गुड। अब ये बताओ ये 30 ये 30 60 और ये 10 मिला दो तो एंगल कितना हुआ? 70। तो एंगल इज इक्वल टू 70 डिग्रीज। देखो आसानी से निकलता है। तो यहां कोई भी अजीबोगरीब टाइम भी दिया तो हम निकाल सकते हैं कि नहीं? अब इसका रिवर्स कैसे निकालते हैं अब ये भी सीखो, क्योंकि क्वेश्चन रिवर्स भी होता है। क्या सब लोग ये लिख चुके हैं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, write down the another question. Find the time. Find the time between 4 o'clock and 5 o'clock. Find the time between 4 and 5 o'clock when the angle between the minute hand and hour hand is 78 degree. The minute hand and hour hand is 78 degree. देखो angle given is 78 degree. और ये तुम्हें देखो क्वेश्चन का मीनिंग क्या है कि आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच में 78 डिग्री एंगल है। तो अगर 4 से 5 के बीच का समय कुछ हो रहा है तो कितना बज रहा होगा, अब ये निकालना है। तो सबसे पहले देखो ये तो हमें समझ में आता है कि 4 और 5 मतलब इसके बीच में आवर हैंड है,
चलो कहीं पे भी हम डाल देते हैं, यहाँ पे मान लो डाल दिया आवर हैंड इज हियर। अब मिनट हैंड देखो 78 डिग्री कहाँ पे हो सकता है, देखो 30 से 60, तो यानी इसको क्रॉस करके मिनट हैंड यहाँ पे हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी है। दूसरा पॉसिबिलिटी है देखो 30 30 60 और प्लस ये एक छोटा सा एंगल है, यानी यहां भी हो सकता है। तो मिनट हैंड का लोकेशंस देखो कितना पॉसिबल है, 2 टाइम पॉसिबल है। देखो या तो इधर होगा तब भी एंगल 78 हो सकता है, इधर होगा तब भी हो सकता है। डिड यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? Yes. Yes, sir. ओके Yes, sir. अब एक काम करो, एज्यूम कर लो कि टाइम तुम्हारा 4 बज के सपोज x मिनट हुआ, ठीक है, लेट अस से द टाइम इज x मिनट्स पास्ट 4। तो इफ द टाइम इज x मिनट्स पास्ट 4, अब ये बताओ जब हर मिनट के लिए मिनट हैंड कितना ट्रेवल करता है, बोलो। 1 मिनट के लिए मिनट हैंड कितना डिग्री ट्रेवल किया? 6 degree. 6 degrees. वेरी गुड। तो 1 मिनट इज इक्विवेलेंट टू 6 डिग्री ट्रेवल ऑफ मिनट हैंड, करेक्ट? तो ये बताओ x मिनट्स इज इक्वल टू 6x डिग्री ट्रेवल ऑफ मिनट हैंड, ये कह सकते हैं कि नहीं? हाँ या ना? Yes, sir. अब ये बताओ इसके करस्पॉन्डिंग 6x by 12 डिग्री ट्रेवल करेगा आवर हैंड, यानी x by 2 degrees is the travel by the hour hand, करेक्ट? तो देखो आवर हैंड तुम्हारा यहां पे, यहां से यहां ये कितना ट्रेवल किया? x by 2, करेक्ट? और देखो ये ट्रेवल किया कितना डिग्री? ये हो गया 6x डिग्री, करेक्ट? अब देखो ये एंगल मुझे मालूम है, ये जो है ये एंगल, दिस एंगल इज इन फैक्ट हाउ मच? This 78. angle is equal to 78 78 degree. So now it is all about getting the equations right. तो अब यहां ध्यान से देखो, हम टोटल काउंटिंग कर रहे हैं। देखो यहां से ये हो गया टोटल कितना? 4 into 30 यानी 120 प्लस x by 2, करेक्ट? ये कंप्लीट एंगल और माइनस ऑफ 6x. नाउ दिस इज 78 डिग्री, यस और नो? देखो बेसिक बात समझ में है, मैंने टोटल एंगल निकाला, तो टोटल एंगल कितना हुआ? यहां से आवर हैंड कितना ट्रेवल किया? यहां से पूरा देखो 120 प्लस x by 2। अब इसमें से मैं ये 6x डिग्री इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो देखो 120 माइनस 78 इज इक्वल टू 5.5x यानी 11x by 2, करेक्ट? तो 120 minus 78 is 42. So 11x by 2. So x will be 42 into 2, that is 84 by 11. अब 84 by 11 को क्या लिखोगे? डिवाइड कर लो, तो 84 by 11 so 77, और ये फिर से आ गया 70, तो 0.6, so 66, ये हो गया 43, 33, फिर से 7 आया, ठीक है? तो हम ऐसे लिखेंगे 7.637, नाउ दिस मैनी डिग्रीज। अब इसको मिनट और सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हो। तो देखो x अगर इतना है तो हम इसको 7.5 से ये बड़ा है, सॉरी, तो इसको हम लेंगे अप्रोक्सीमेटली 8 मिनट्स, यानी 4:08 408 जब तुम्हारा टाइम होगा तब ये एंगल लगभग 78 डिग्री होगा। देखो ये एक आंसर है, ये पहला वाला लिख चुके हो एवरीबॉडी? ये समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. लिख लिए हो? Yes, sir. Yes, sir. लिखते भी जाओ पैरेलली। देखो पहला 3-4 क्लास हो सकता है तुमको बोरिंग लगे, लेकिन ये बोरिंग पार्ट भी बहुत जगह काम आएगा, ठीक है? फर्स्ट 3-4 क्लास until unless I start compound angles, तब तक तुम्हें हो सकता है थोड़ा बोरिंग लगेगा।
लेकिन बहुत बच्चे होंगे जो ये नहीं पढ़े हैं, इसीलिए आई हैव स्टार्टेड फ्रॉम जीरो। दैट मीन्स अज्यूमिंग कि तुम कुछ नहीं पढ़े हो, मतलब 11th का कोई पार्ट नहीं पढ़े हो, ठीक है। अब देखो दूसरा पॉसिबल, तो इसको मिटा दे नीचे वाले पार्ट को। हाँ सर। Yes, sir. अब देखो, अब दूसरा पॉसिबल टाइम यहाँ पे भी हो सकता है, मतलब 35 मिनट से ज्यादा। तो इसमें भी इक्वेशंस सेम होगा, इसमें ऐसा नहीं है कि कुछ अलग होगा। अब देखो, अब हम इसको, ये वाले केस को यहाँ पे हम ये डायग्राम को मिटा देते हैं, ठीक है। देखो ये x/2 ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब अंतर क्या है, देखो यहां से यहां तक ये हो गया 6x डिग्री, करेक्ट। अब 6x डिग्री टोटल एंगल, मतलब ये फाइनल। अब इसमें से देखो इक्वेशन खाली चेंज कैसे होता है। देखो दिस टोटल इज 6x डिग्री। अब इसमें से माइनस करो पहले यहां तक ये वाला, इनफैक्ट ये टोटल एंगल। तो दिस इज 120 प्लस x/2 and this is 78 degree, correct? So 11x/2 is now 198 degree, okay? अब 198 इसमें से काट दो, तो 198 काटेंगे तो x कितना आया बताओ? 18 into 2 36। तो 36 अगर है तो दूसरा पॉसिबल टाइम आता है 4:36। तो देखो जब 4:36 होगा तब भी मिनट हैंड और आवर हैंड में एंगल ये 78 डिग्री होगा, या 4:08 होगा तब भी ये आएगा। लेकिन अब यहाँ पे मैं एक चीज कॉशियसली बता देता हूँ, ध्यान से सुनो। अगर मान लो ये सिंगल चॉइस क्वेश्चन हुआ तो एक्यूरेट आंसर इसमें आया, ये तो अप्रोक्सीमेशन में आया, यानी ये एंगल एग्जैक्ट 78 नहीं होगा, एग्जैक्ट 78 इसी में होगा। तो ये तुम्हारा परफेक्ट आंसर है। तो अगर सिंगल चॉइस होगा तो इसी को टिक करोगे, ठीक है। और सब्जेक्टिव आया तब दोनों टाइम लिख दोगे जैसे मैंने बताया था, ठीक है। तो डिड यू अंडरस्टैंड दिस ऑल ऑफ यू? यस सर। Yes, sir. इसे मिटा दें? हाँ सर, मिटा दी। हाँ सर बेटा। सब लोग लिख लिए हैं? तो घड़ी वाले क्वेश्चन में अब तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, चाहे तो मैं नो सर। Yes, sir. Yes, sir. ओके। अब ठीक है। तो देखो 30 डिग्री यहाँ पे जो भी होगा, जैसे ये 30 π/180, जस्ट सिंपली मल्टीप्लाई दिस, और इसमें कुछ है नहीं। तो ये कट गया तो तुम्हारा π/6, ठीक है। तो इसीलिए देखो बेसिक कुछ कुछ जो एंगल्स हैं स्टैंडर्ड एंगल्स, रिमेंबर दैट। तो स्टैंडर्ड एंगल्स यू हैव टू रिमेंबर। अब जैसे π/6 मतलब सीधा हो गया 30 डिग्री, π/4 मतलब हो गया 45 डिग्री, π/3 हो गया तुम्हारा 60 डिग्री, ठीक है। और ऐसे ये स्टैंडर्ड एंगल्स 90 डिग्री मींस π/2, यू शुड ऑल रिमेंबर। अब यहाँ पे एक काम का बात भी आता है, अब यहाँ ध्यान से देखो, क्योंकि ये फिजिक्स में भी तुम लोग यूज करोगे बहुत जगह। नाउ लेट अस से दिस इज आर्क ऑफ अ सर्कल, और ये मुझे अब इस आर्क का लेंथ चाहिए, ठीक है। I have given you that it subtends theta angle at the correct। तो ये लेंथ, ये मान लो O है, A है और ये B है। तो ये बताओ, ये सिंपल सा एक रेडियन, ठीक है, रेडियस ऑफ द सर्कल इज R। तो 1 रेडियन इज व्हाट? The angle subtended by an arc equal to the length of its radius। तो अब ये बताओ, एक रेडियन गिव्स आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू इन फैक्ट r, that is the radius। तो थीटा रेडियंस एंगल गिव्स हाउ मच? तो r थीटा होगा कि नहीं? तो हम यहां से क्या कहेंगे कि लेंथ ऑफ, see this is an important result, length of arc subtending theta at
center is equal to r theta, और ये एक काम का बात है, ठीक है। ये सबसे पहला ये लिख चुके हो। So what is the length of any arc subtending an angle theta at center of us? हाँ बोलो। सर अरुणव सर एक लड़का है सर, वो कॉल कर रहा था शायद सर, वो वेटिंग रूम में सर, एक्सेप्ट करने बोल रहा था आपको। नहीं दिखा नहीं रहा यार, यहाँ तो कहीं दिख ही नहीं रहा है अरुणव। नहीं सर, वो बोला कि प्लीज वेट बोल रहा है उसको। तो एक काम करो, उसको बोलो पुराना लिंक पे ही ज्वाइन करेगा। एक्चुअली वो नया वाला लिंक मैंने एक भेजा, लेकिन वो पुराना मीटिंग ही एक्टिव था, ठीक है। वो नेटवर्क की वजह से कर दे। हाँ एक बार बोल दो पहले। रुको उसको ज्वाइन करने दो, तब तक हम नेटवर्क भी हम चेंज कर देते हैं। विजिबिलिटी बोल दिया अरुणव को। आयुष हेलो। अर्णव को बता दिए आयुष। हेलो हेलो। Yes, sir. No, actually one student Arnav is left out, so just waiting for him to join also. और बाकी सब लोग लिख लिए हो तो? हाँ सर। अच्छा, तो length of arc subtending an angle theta at center will always be equal to r theta. अब देखो इसी में एक और चीज आता है। If I take theta to be very small, now tell me, ये अगर height of this है, ये देखो ये मान लो h है height, तो length of AB और ये h ये लगभग सेम होगा कि नहीं? देखो ग्रुप में 4-5 बच्चा बोल रहा है ऐड करने के लिए मीटिंग में।
लेकिन रिक्वेस्ट बोल तो रहा आया कि- नहीं। सर बोल तो रहा है ग्रुप में, अभी जस्ट 5 मिनट पहले ही आया। अच्छा रुको, तो क्या करें, डिस्कनेक्ट करके फिर से करें, क्योंकि इसमें नहीं है वो लोग। हाँ सर, इसमें नहीं, हम देखे पहले उन लोग का मैसेज देखे, फिर देखे ऐड नहीं है, मतलब मीटिंग में नहीं है अभी। अच्छा रुको, हम एक काम करते हैं, उसको बोलो फ्रेश, हम लिंक भेज रहा है, ठीक है, इस मीटिंग को क्लोज कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है सर। रुको, हम उनको लिंक भेजते हैं फ्रेश, ठीक है। देखो अब आ गए बच्चे सारे, हेलो। Now, those who have missed out, now I'll once again repeat for you all. Now have a look here. अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये एक सर्कल है. Now AB is an arc which subtends theta angle at the center. तो ये AB आर्क का लेंथ क्या होगा? तो देखो, एक रेडियन का डेफिनेशन क्या है? देखो, एक रेडियन होता है कि अगर एक सर्कल है, उसके रेडियस के बराबर, आर के बराबर जो लेंथ होगा, सबटेंड करेगा, दिस इज 1 रेडियन. तो आई कैन से 1 रेडियन गिव्स एन आर्क लेंथ इक्वल टू हाउ मच? द रेडियस ऑफ द सर्कल. तो थीटा रेडियन एंगल कितना देगा? तो सिंपली आर थीटा. तो यहां से देखो, कंक्लूजन आया कि द लेंथ ऑफ आर्क सबटेंडिंग थीटा एंगल एट सेंटर विल बी आर थीटा. ठीक है, I hope you have all understood this. ये समझ में आया सबको? Yes. हेलो. तो अब यहाँ पे देखो, अब मैंने इसको, इस आर्क का एरिया निकालने का कोशिश कर रहा हूं. ठीक है, ध्यान से देखो. If theta is very very small, okay? If theta is very very small, now tell me
ये एंगल अगर बहुत छोटा होगा तो ये यहाँ पे काफी छोटा आएगा कि नहीं? तो अब उतना छोटा देख नहीं पाओगे, इसलिए मैंने इसको थोड़ा बड़ा किया है। देखो ये हाइट h और ये AB लेंथ, क्या इन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा क्या अगर थीटा बहुत छोटा होगा? तो अंडर दिस कंडीशन h is approximately equal to length of this arc, यानी ये r थीटा के बराबर होगा कि नहीं? और साथ में हम ये भी कह सकते हैं कि देखो ये पॉइंट C है मान लो, तो OC will approximately be equal to OA, क्या ये कह सकते हैं? देखो तुम इमेजिन करो एक सर्कल, इसी को देखो मैं बहुत छोटा कर दिया, तो देखो अब ये यहाँ पे आ गया, तो लगभग ये आर्क और ये हाइट h मर्ज हो जाएगा। तो OC यानी ये लेंथ जो मैंने लिया और ये बराबर हो गया। तो अब ये बताओ एरिया, अब अंडर दिस कंडीशन ये जो सेक्टर है ये क्या बन गया? एक ट्राइंगल बन गया कि नहीं? हेलो, तो अब बताओ एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? हाफ बेस इनटू हाइट। तो एरिया ऑफ OAB, देखो इस सेक्टर का एरिया क्या लिखेंगे? हाफ ऑफ OA इनटू H, यानी हाफ ऑफ OA हो गया रेडियस R इनटू R थीटा, so this is half of R square theta। तो ये बात याद रखो, एरिया ऑफ अ सेक्टर, ओके, एरिया ऑफ अ सेक्टर, नाउ दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ R square theta। और ये भी एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। तो लेंथ ऑफ आर्क subtending theta at center is R theta, and area of a sector which subtends theta angle at the center is in fact half of R square theta। अब देखो ये दो छोटी छोटी चीजों को क्वेश्चन में कैसे, फॉर्मूला तभी ना वैलिड होगा जब थीटा बहुत छोटा होगा। हाँ एग्जैक्टली, ये तो मैंने स्पेसिफिकली लिख दिया है, देखो थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, करेक्ट। देखो बड़ा के लिए हमको ये लिखने की जरूरत क्या है? अगर बड़ा हुआ मान लो इट सबटेंड्स π/3 रेडियंस, ठीक है, तो देखो तो 2 π/3 रेडियन यानी कितना हुआ? मतलब फुल सर्कल का कितना हिस्सा हुआ बताओ? 1/6 हुआ कि नहीं? तो π/3 रेडियन सबटेंड करेगा तो सीधे आंसर है πr²/6। तब हम क्यों लगाएंगे ये तभी तुम्हें लगाना पड़ेगा जब थीटा बहुत छोटा क्वांटिटी है, बहुत छोटा, मान लो से 1 डिग्री है, तो 1 डिग्री बहुत छोटा एंगल होता है, तो यहाँ पे हम उसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ याद रखो थीटा डिग्रीज में नहीं, कि हर दोनों ही केस में थीटा इज इन रेडियंस, ये बात मत भूलना। तो कभी भी क्वेश्चन में एंगल देगा तो तुम उसे रेडियंस में कन्वर्ट करोगे, ठीक है। Everybody has written down this, all of you? Yes, sir. बच्चे लोग लिख लिए हो तो अब इसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन लिखो। अब ये आंसर तुम लोग खुद दे सकते हो। देखो अब विजिबिलिटी में कोई दिक्कत नहीं है ना बच्चे लोग? नो सर। ओके, कभी भी कोई दिक्कत होगा तुरंत मतलब इंस्टेंटली आस्क योर डाउट और व्हाटएवर प्रॉब्लम वो एक्सप्रेस करो, ठीक है, क्योंकि अभी हम सामने तो है नहीं, ना ही तुम लोग फेस टू फेस हो, तो दिस इज जस्ट अ मेकशिफ्ट अरेंजमेंट जो हम लोग इसमें कर सकते हैं लॉकडाउन सिनेरियो में। क्या बोलो? आवाज नहीं आ रहा तुम्हारा साफ से, थोड़ा साफ से बोलो। प्रॉब्लम हो रहा है। प्रॉब्लम तुम्हारा नेटवर्क में होगा, देखो दिक्कत। वीडियो
चैट बॉक्स में मैसेज कर दो ना लिख के। अरे अब लिखना हो गया सबका बच्चे लोग? चलो एक क्वेश्चन सर, लिखो। सर प्लीज हाँ एक बोलो। मिनट रुक जाइए सर, अभी जस्ट ऐड हुआ हूँ मैं, आई एम कॉपिंग। ओके 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 फाइन। देखो समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं समझ में आ रहा है तो हम समझा देते हैं। अच्छा तुम जस्ट ऐड हुए हो तो देखो आई एम जस्ट रिपीटिंग दी थिंग्स ब्रीफली फॉर यू। ओके see this is a circle. Okay, now there is an arc AB, it is subtending an angle theta, so I want to find the length of the arc AB. तो अब ये बताओ एक रेडियन कितना आर्क लेंथ सबटेंड करता है? आर यूनिट्स रेडियस के बराबर। तो थीटा कितना एंगल सबटेंड करेगा? आर थीटा। बस यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं। यस सर। ठीक है, तो लेंथ ऑफ आर्क सबटेंडिंग एन एंगल थीटा एट सेंटर विल बी आर थीटा। लेकिन ये बात याद रखना, थीटा इज इन रेडियंस, करेक्ट? यस सर। अब दूसरा हिस्सा मैंने यहां समझाया कि ये देखो OAB एक सेक्टर है, तो OAB अगर ये एक सेक्टर है तो यहाँ पे एक काम करना कि इफ थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है, तो देखो जब बहुत छोटा कर देंगे, देखो यहाँ पे मैंने लाइन दिया, तो आर्क मेरा ऐसा है, तो इसका हाइट भी और ये आर्क का लेंथ ऑलमोस्ट बराबर होगा। तो देखो दिस एच विल अप्रोक्सीमेटली बी इक्वल टू AB। अब AB कितना है? आर थीटा। और देखो ये नेग्लिजिबल अमाउंट ना बचेगा, तो हम कह सकते हैं कि लगभग ये OC और ये OA इक्वल हो जाएगा इफ थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल अंडर दैट कंडीशन। तो यानी बेस ऑफ द ट्राइंगल, तो OC लगभग तुम्हारा OA यानी R के बराबर होगा। तो बताओ OAB और OBC ये लगभग सिमिलर होगा कि नहीं? यस सर। OAB और OBC। तो अब OBC देखो एक ट्राइंगल है, इसका एरिया क्या होगा? हाफ बेस इनटू हाइट। देखो हाफ बेस OA इनटू हाइट, तो देखो OA रेडियस ऑफ द सर्कल है, तो हाफ R इनटू R थीटा। तो हाफ R स्क्वायर थीटा इज द एरिया ऑफ अ सेक्टर। लेकिन ये फॉर्मूला लगाना कब है? ये लगाना है सिर्फ और सिर्फ जब थीटा बहुत छोटा है, और थीटा रेडियंस में लिखोगे। और बाकी केसेस में जब थीटा बड़ा है, जैसे देखो मैंने एग्जांपल लिया, थीटा अगर π/6 है यानी 30 डिग्री है, सॉरी π/3 60 डिग्री है, तो देखो 60 डिग्री 360 डिग्री का कितना हिस्सा हुआ? 1/6। एरिया ऑफ सर्कल πr² है, तो 1/6 कर दिया, बस वैसे निकालो। तो जब एंगल बड़ा होगा तो नॉर्मल ये टेक्निक लगाओगे, और छोटा होगा तब ये दोनों यूज करोगे। ठीक है, अब देखो एक छोटा सा क्वेश्चन लिखो तो। रेडी? लिखो द व्हील ऑफ अ रेलवे कैरेज, द व्हील ऑफ अ रेलवे कैरेज of diameter 1.2 meters, of diameter 1.2 meters makes 5 revolutions per second, makes 5 revolutions per second। ठीक है,
then how find the speed of the train in kilometers per hour? ठीक है, तो अब यहां ध्यान से देखो, रोटेशंस पर सेकंड, तो देखो एक रोटेशन में कितना एंगल कवर किया, 2 पाई रेडियंस। हाँ ना, कुछ तो बोलो बच्चे लोग। यस सर। हाँ सर, हाँ सर। तो एक रोटेशन इतना है, तो 5 रोटेशन में 10 पाई रेडियंस कवर किया। अब देखो डायमीटर अगर तुम्हारा 1.2 है तो रेडियस 0.6 मीटर्स हुआ कि नहीं, करेक्ट। अब देखो आर थीटा, यही ना एंगल है, तो देखो द डिस्टेंस कवर्ड, राइट, डिस्टेंस कवर्ड पर सेकंड कितना हुआ, 10 पाई इंटू 0.6, यानी ये 6 पाई मीटर पर सेकंड का स्पीड है। अब मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं बताओ, किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 18/5। तो 18/5 से 18 इंटू 6/5 इंटू 22/7 kmph। देखो क्या ये लिख सकते हैं? पाई का वैल्यू ऐसे कामों के लिए हमेशा 22/7 लोगे, ठीक है। अब बाकी तुम कैलकुलेशन खुद करोगे, कैलकुलेशन हम नहीं करेंगे। अब इसके आगे मैं थोड़ा बढ़ता हूं, या यहीं तक तुम्हें छोड़ दूं, क्वेश्चन दे दो, क्योंकि इसके ऊपर थोड़ा क्वेश्चन ज्यादा है आज जो पढ़ाए हैं। 34 प्लस 20, 54 क्वेश्चंस है असाइनमेंट में। सर छोड़ दीजिए। सर कल आपका क्लास होगा ना? कल ने पढ़ा, कितने बजे पढ़ोगे? हाँ सर, जब कितना सर बजे आप पढ़ोगे? सर अच्छा, तो सुबह ही फर्स्ट हाफ में। नहीं, फर्स्ट हाफ में थोड़ा सा समस्या है, क्या शाम में जानते हो? पढ़ाओ। सर रात फर्स्ट में हाफ पढ़ाइए। सर रात हाँ। में। रात में सर, रात में शाम में पढ़ाई ना सर सर। केमिस्ट्री क्लास भी रहता है सर 8 बजे से, तो उसके सर पहले थोड़ा। अच्छा, सर फिजिक्स रुको ना, क्लास भी होगा। हाँ ये भी तो है। तो नहीं आप मेरा सर क्लास होगा, सुनो मेरा अगर होगा भी तो 4 बजे होगा, तो 4:30। ठीक है सर। हाँ सर, ठीक है सर। ओके, तो ये असाइनमेंट्स मैं तो अभी व्हाट्सएप ग्रुप में अपलोड कर दूंगा, ठीक है। हाँ, एक बात ध्यान देना, सुनो, एक दिन के लिए एक ही मीटिंग आईडी होता है। मैं थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया था, तो जो पहला लिंक जो भेजूंगा उसी पे क्लिक करना है, ठीक है। और वही यूजर आईडी, मीटिंग आईडी और पासवर्ड वैलिड होगा, मतलब चाहे वो 2 सेशन हो, 3 सेशन डिस्कनेक्ट हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। यस। और ये सीरियसली सारा क्वेश्चन सॉल्व करना, ओके। नेक्स्ट क्लास वी विल बी स्टार्टिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। आज एंगल में